Tahir Hassan, and I'm an orthopedic fellow at Hyderabad Medical Complex, Peshawar, and my supervisor and mentor is Dr. Salih Kashif. We are going to present a case of bilateral foot deformity in Charcot-Marie-Tooth disease. So this was a 14-year-old boy who presented to OPD with bilateral cavovarus foot deformity and foot pain. The deformity was progressive in nature. On examination, there was high medial longitudinal R with curved lateral border, and the hind foot was in varus, and there were clawing of toes. However, the Coleman block test shows that on both sides, right and left, the hind foot varus was a flexible deformity, and there was also intrinsic muscle wasting of the hand. This is the NCS and EMG test, which was done somewhere else, and it showed that the findings were consistent with hereditary sensory motor polyneuropathy. These are the clinical pictures, which shows that a high arch cavus with clawing of the fingers, and along with that, the plantar flex first rear with curved lateral border, and the hind foot on both sides were in varus. These are the preoperative X-ray of the left foot. The shows that there is a calcaneal angle of 8 degree, which shows that the hind foot is in varus, and the calcaneal pitch is increased about 60 degree, which shows that there is a cavus deformity, and the Mary angle, the tail of first metatarsal angle, and the lateral X-ray is also increased to 40 degree. This is on the right side. The right side calcaneal pitch was 65 degree, and the Mary angle was 50. So it also shows that there was high cavus and the varus of the hind foot. So we operated the left foot first, and then after 6 to 8 weeks, we operated the right one. Operatively, for the cavus deformity, plantar fascia was released first, and then we proceed towards the first metatarsal dorsiflexion osteotomy. So the cavus was corrected with these two procedures. Then we transferred the tibialis posterior to the lateral cuneiform, and the peroneus longus was transferred to the peroneus brevis to balance the deforming forces. Correction was achieved, and then the cast was given in the corrected position for 6 weeks. And the patient was allowed to wet bear after cast removal. This was the post-operative clinical pictures after the correction of the left foot only. As it is obvious that the right side is not yet operated. So this shows that the cavus has been corrected, and also the varus has also been corrected on the left side only. These are the post-operative X-ray, which shows that the angles were improved considerably. The Mary angle was reduced from 40 degree to 15 degree, and the calcaneal pitch was reduced from 60 to 35 degree. And the hind foot varus was corrected, and the angle was decreased to 25 degree, which is in normal ranges. This is the post-operative video after the left foot was operated. We haven't operated the right foot yet. A significant improvement of the deformity only on the left side. Also, the right side shows that the deformity is like supinated type and with varus, and there is high arched cavus. After 6 weeks, we operated the right foot. These are the post-operative clinical pictures and X-rays of the right foot. The foot is still in the cast. It is operated only 3 weeks before. It is quite evident that the cavus has also been corrected, and the varus has also been corrected. So we a stepwise approach we considered it to be adopted. It for the cavus, we release the plantar fascia and then the plantar ligaments, and after that we did the first metatarsal dorsiflexion osteotomy. Usually in 90% of cases, correction is obtained for the cavus. If it is not corrected yet, so we can go for the medial cuneiform plantar opening, which is osteotomy. And if it's still not corrected, then we go for the dorsal closing wedge osteotomy at the metatarsal level, depending upon the deformity that where it lies. For the hind foot varus, if the Coleman block shows that this is the flexible deformity, so with the forefoot deformity correction, usually it corrects by itself. And if it is a rigid deformity, then we go for calcaneal, usually in the lateral closing wedge osteotomy. For deforming forces balancing, we transferred the tibialis posterior to the dorsum of the foot, and the peroneus longus to the peroneus brevis transfer. And for clawing, we usually do Hibbs and Jones procedure. But in this patient, he was not complaining of much issue he had from the clawing, so we left it as such. Thank you very much, sir. A very good presentation और अच्छा result था. Case is open for discussion. And the points and comments. What was the procedure done in this case? This was a soft tissue procedures along with first metatarsal dorsiflexion osteotomy for the cavus correction,
plantar fascia release, and after that dorsiflexion osteotomy of the first metatarsal, we achieved correction of the cavus with this, sir. And for the balancement of the deforming forces, we transferred tibialis posterior to the lateral cuneiform, and peroneus longus was transferred to peroneus brevis. तो इस केस में कोई और साइन सिम्टम सीएमटी के थे? यस सर। सर इसमें इंट्रिंसिक मसल वेस्टिंग भी थी और इंसियस एमजी पे भी उन्होंने डायग्नोस किया था कि हेरिडिटरी पॉलीन्यूरोपैथी, सेंसरी पॉलीन्यूरोपैथी ना। तो ये क्लासिकल प्रेजेंटेशन बेसिकली सीएमटी की बनती है, जो कि एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। यस सर। जी सर, इसमें हमने इस केस को इसलिए इंक्लूड किया, सॉरी कैन आई से अ फ्यू वर्ड्स? जी प्लीज। क्योंकि ये सीएमटी वी नो दैट इट्स अ प्रोग्रेसिव डिफॉर्मिटी, और इस पेशेंट को हमने बहुत काउंसिल किया कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, बट उसकी गेट इतनी वो थी, इट वाज अनस्टेबल और बायलेटरल था, तो वो फ्रीक्वेंट फॉल्स था, वीकनेस भी थी। तो हमने उसको काउंसिल किया कि हम इसकी डिफॉर्मिटी करेक्ट कर लेते, टेंडन ट्रांसफर भी कर लेते, बट इट्स अ प्रोग्रेसिव डिफॉर्मिटी और इसमें रिकरेंस होगा। मतलब इसमें कंट्रोवर्सी ये होती है कि हाँ, ये प्रोग्रेसिव डिफॉर्मिटी है तो इसको करे या ना करे। सो वी ट्राई टू डू ऑस्टियोटमीज फॉर दीस केसेस एंड लिटिल बिट ऑफ टेंडन ट्रांसफर सो दैट वी कैन बैलेंस देम। मेरा ख्याल था कि दो बच्चों की हमने कैल्केनियल ऑस्टियोटमी की थी, उसकी वेलगस शायद ये वही था, लेकिन इसमें क्योंकि अभी मुझे याद आया ताहिर ने प्रेजेंट किया कि ये इसकी फ्लेक्सिबल थी वेलगस, तो इसलिए हमने उसकी कैल्केनियल ऑस्टियोटमी नहीं की। बाकी इसका जो किया उसमें करेक्ट हो रही थी। हाँ उसमें फ्लेक्सिबल था, तो मेरा ख्याल में कि ये वो रिजिड वाला था। इसमें वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये होता है कि इसकी जो केवस होती है बहुत रिजिड होती है, उसकी वजह से फर्स्ट मेटाटार्सल वो अर्ली टच करता है और उसकी वजह से फिर वेरस आ जाता है। तो केवस के साथ वेरस होता है तो उसकी और अगर वेरस होता है तो उसके साथ सेकेंडरी केवस होता है, तो ये एक दूसरे को टेली करते हैं। तो अगर केवस इज द काज तो उसकी केवस को करेक्ट करें तो हाइंड फुट वेरस है वो पैसिवली करेक्ट हो जाएगा, और अगर रिजिड वेरस काज है तो उसको आप करेक्ट कर लें तो फोरफुट में वो केवस इंप्रूव हो जाएगा। तो इसमें ये ऑस्टियोटमी की और हमने इसकी टिबियालिस पोस्टीरियर ट्रांसफर की। वी वर थिंकिंग अबाउट हिब्स एंड जोन्स फॉर द क्लॉट वॉज, लेकिन उसकी एक तो क्लॉट वॉज उसकी फ्लेक्सिबल थी और उसमें उसने कहा था कि मुझे इससे कोई कंप्लेन नहीं है, तो वो हमने फिर छोड़ दिया था। बट द पेशेंट इज स्टिल वेरी हैप्पी एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। नहीं, ये तो रिजल्ट्स आपके शो कर रहे हैं माशाल्लाह, जो है ना कि बड़ा अच्छे प्रोसीजर और जो रिक्वायर्ड थे वही किए गए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये तो इतना सीवियर था कि इसमें सर्जरी इंडिकेटेड थी। इनिशियल स्टेजेस में आदमी कर सकता है कि चलो जी कोई ऑर्थोटिक्स और ब्रेसिंग वगैरह से करके। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें जो था वो यही था कि इनकी काउंसलिंग जरूरी थी कि इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज, और पोस्ट ऑप में इसको न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट वगैरह भी करा के न्यूरोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए ताकि वो प्रॉपर वो चलता रहे, और एक अच्छा फॉलो अप जरूरी है इसका। अच्छा केस था, अच्छा रिजल्ट है इसके, बड़े अच्छे रिजल्ट है। बहुत अच्छे रिजल्ट इसके हैंड फुट के वायरस के लिए सम टाइम वी नीड टू डू समथिंग और जस्ट इस करेक्ट हो जाता है हैंड फुट के लिए? जी सर, मैंने बताया जिस तरह अगर वेरस इसका फिक्स्ड है, रिजिड है, तो उसमें फिर हम कैल्केनियल वेलगस और स्लाइडिंग ऑस्टियोटमीज कर सकते हैं। बड़े आसान होते हैं, वो बहुत छोटे से इंसिजन से हो जाता है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं सर। सर सालिक से यही क्वेश्चन मैं करने लगा था कि अगर एक तो कोलन ब्लॉक टेस्ट पे हम प्री ऑप कुछ डिसीजन ले लेते हैं, और अगर रिजिड है तो हमने प्लान किया होता है कैल्केनियल स्लाइडिंग ऑस्टियोटमी का, तो वो जो कैल्केनियल स्लाइडिंग ऑस्टियोटमी सर उसकी कोई लिमिट भी है कि कितने सेंटीमीटर तक हम उसको स्लाइड कर सकते हैं और उससे ज्यादा हमने नहीं करना? ये सर काइंडली इसके हवाले से थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। जी नासिर, नाइस टू हियर फ्रॉम यू। नासिर हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है माशाल्लाह। तो हाँ, इसमें इट्स डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द डिफॉर्मिटी। तो उसकी बेसिकली कैल्केनियम को हमने न्यूट्रल तक लाना है और 10 डिग्रीज वेलगस, ठीक है। तो इन बिटवीन इन एंगुलेशन को रखना है, तो जितना सिवियर डिफॉर्मिटी होगी उतनी इसको स्लाइड करेंगे। बाकी अगर 50% की कैल्केनियल सरफेस हम कर सकते हैं तो दैट इज गुड इनफ। तो ये स्लाइडिंग ऑस्टियोटमी दो स्क्रूज के साथ फिक्स करते हैं आप? जी सर, 2 स्क्रूज के साथ फिक्स करते हैं। कभी कभी छोटे बच्चों में केवार्स के साथ भी फिक्स करते हैं, वो 6 वीक्स में बहुत सॉलिड हील हो जाते हैं, तो हम रिमूव कर सकते हैं। कास्ट के साथ ही केवार रिमूव कर लेते हैं। बिल्कुल सही। But most of the time sliding is 1 to 1.5 centimeters needed. जी सर, बिल्कुल हो जाता है। यूजुअली 1 सेंटीमीटर से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, 1 सेंटीमीटर। जी बिल्कुल। उसमें सर आप अगर बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटी है और उसमें फिर भी आप निकाल सकते हैं लेटरल साइड पे स्लाइडिंग प्लस अ वेज, तो उससे और भी जो इवेंस लैटरल वेज ऑस्टियोटमी है उसकी करके। जी सर, वी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइडिंग एंड वेजिंग अगर ज्यादा डिफॉर्मिटी है। एग्जैक्टली, इन द सेम केस दे कैन बी परफॉर्म्ड। अस्सलाम वालेकुम सर।
सर वालेकुम बहुत सलाम। अच्छा केस सर आपने प्रेजेंट किया है। और सर बड़ा अच्छा लगता है कि जब इस तरह के डिफॉर्मिटीज करेक्शन के जो केसेस है जब हम देखते हैं तो हमें भी बड़ा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस इसमें मिलता है। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि, और एक एक्सपीरियंस ये था कि जब हम लोग करते हैं ना तो हम एक तो कूलमैन ब्लॉक टेस्ट है जो आपको बता देता है कि रिगार्डिंग द फ्लेक्सिबिलिटी और द रिजिडिटी ऑफ द फुट के बारे में। सेकेंडली हम एक प्री ऑप असेसमेंट भी कर लेते हैं, पर ऑप सॉरी। उसमें इस तरह है कि फुट को एबडक्ट करके कल्केनियम को न्यूट्रल करके वी पुट ए रिट्रोग्रेड वायर फ्रॉम कल्केनियम टू टालस इनटू द टिबिया। इसके बाद फिर हम मिड टार्सल ऑस्टियोटमीज करते हैं। अब मिड टार्सल ऑस्टियोटमी करने के बाद या फिर लेटरल क्लोजिंग वेज ऑस्टियोटमी के बाद अगर कल्केनियम फिर भी वेल्गस में जा रहा है देन वी गो फॉर दी स्लाइडिंग ऑस्टियोटमी। सर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आपका इसके बारे में? जी शहजाद, थैंक यू सो मच। ये तो आपने एक अच्छा बताया। पर ऑपरेटिव हम भी असेस करते हैं, लेकिन वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड प्री ऑपरेटिवली फॉर दिस केस। और इसमें बहुत आसान होता है। द वेरस कैन कॉज द केवस और द केवस कैन कॉज द वेरस। ये प्राइमरी डिफॉर्मिटी और सेकेंडरी डिफॉर्मिटी आप क्लियरली डिफाइन करें प्री ऑप, तो फिर प्लानिंग बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि आप प्राइमरी डिफॉर्मिटी को करेक्ट करें तो सेकेंडरी डिफॉर्मिटी खुद ही करेक्ट हो जाती है। और सर इस केस का फॉलो अप आपके पास मैक्सिमम कितने इयर्स तक का है? यानी कि हाँ, जो 1 ये ईयर तो बड़ा बच्चा है। मैं तो एडल्ट्स देखता नहीं हूँ, तो 18 इयर्स तक, एडोलेसेंट तक हम फॉलो करते तो हैं। इसका जो फॉलो अप है, यानी सर आपके पास 1 ईयर पोस्ट फॉलो अप है जिसमें रिकरेंस वगैरह कोई ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि मेरे पास एक केस आजकल रिसेंटली एक आ रहा है, वो अराउंड कोई 7-8 इयर्स में ऑपरेट हुआ था। एस्टैब्लिश केस ऑफ शार्कोट मेरिटोट डिजीज है। उसमें भी यही प्रोसीजर किए थे, एक्सेप्ट के एट दैट टाइम लेटरल यानी कि नॉट मिड टार्सल ऑस्टियोटमी वाज डन। अब जो बच्चा है ना वो 16 इयर्स ओल्ड है एंड ही हैज प्रेजेंटेड अगेन विद द रिकरेंस डिफॉर्मिटी। और इस तरह के केसेस में रिकरेंस बहुत ज्यादा कॉमन है। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि सर आपके पास मैक्सिमम फॉलो अप कितने इयर्स तक है, और क्या आप पोस्ट ऑपरेटिवली बच्चों को लाइफ लॉन्ग एएफओस के ऊपर डालते हैं या एएफओस वगैरह खत्म कर देते हैं? अच्छा, थैंक यू सो मच। मैंने तो इतना ज्यादा फॉलो अप नहीं देखा, क्योंकि मैंने फुट तकरीबन 3-4 साल इस तरह शुरू किया। पहले मैं सीएमटी इतना नहीं करता था। अभी मैं अगेंस्ट एएफओस एंड ब्रेसेस, स्पेशली एट द डे टाइम। अगर हम एएफओ यूज करेंगे, इनमें और बहुत सारी और कंडीशंस हैं, तो उसकी जो हमारी मसल की स्ट्रेंथ है वो और भी कम हो जाती है, बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग दोज मसल्स एट ऑल। तो वी वांट देम टू यूज दोज मसल्स। और इसको मैं एक स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे बहुत जोर देता हूँ। और नाइट टाइम ब्रेसेस का मैं बहुत फेवर में हूँ कि नाइट टाइम बेशक हो पहना, कोई इशू नहीं। तो उसके साथ रिकरेंस तो शुरू से में हमने कहा इट्स प्रोग्रेसिव डिफॉर्मिटी, इसमें रिकरेंस तो होगी। लेकिन हमने टेंडन ट्रांसफर्स की बैलेंसिंग की है, तो मतलब हम अपने तौर पे इतना कर सके कि उसकी रिकरेंस जितना डिले हो सके हम डिले करें। और मैच्योरिटी के बाद उसकी ग्रोथ सीज हो जाए ना, तो उसके बाद रिकरेंस के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक, चलिए थैंक यू सर, आपका बहुत थैंक यू। चलें डॉक्टर सालिक, आप खुद ही इसको समराइज कर दें केस को। जी सर, बस मैं तो सीनियर्स का वेट कर रहा था कि वो नहीं, दैट वाज एन एक्सीलेंट केस। हाँ जी, आप कर लें। इससे बेसिकली डायलीमा होता है कि शार्को मेरिटोट में हम सोचते हैं कि करें ना करें, रिकरेंस हो जाएगी और वो करेगी। लेकिन पर्सनली मैं डिसीजन करता हूँ पेशेंट के एग्जिस्टिंग फंक्शनल कैपेसिटी में और उसकी नेचुरल हिस्ट्री, ये दो चीजों को मैं कंसिडर करता हूँ। इफ आई कैन इम्प्रूव द फंक्शनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट और इम्प्रूव द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज, देन आई गो फॉर इट। तो इसकी फंक्शनल स्टेटस इसकी फंक्शन बहुत कंप्रोमाइज थी। इसकी वो ये वॉक भी सही नहीं करता, फ्रीक्वेंट फॉल था, और ये स्क्वाट भी नहीं कर रहा था। तो मैंने उससे कहा था कि डिफॉर्मिटी करेक्ट करते आपकी इंशाल्लाह 8-10 साल इंशाल्लाह इससे बेहतर होंगे। बाकी रिकरेंस के बारे में आप फिजियोथेरेपी करेंगे, वो करेंगे, और फिर इंशाल्लाह बाद में देखेंगे इसको। तो दिस वाज आवर केस। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, वंडरफुल प्रेजेंटेशन और विद एक्सीलेंट रिजल्ट्स। इसमें है यही, ऑर्थोपेडिक्स ऑल अबाउट इंप्रूविंग द फंक्शनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। और इसमें जब लेसन लर्न इज के शार्कोट मेरी डिजीज में भी इसमें आपको कोई डरना नहीं चाहिए सर्जरी के लिए। डिग्री ऑफ जो सिवियरिटी ऑफ जो डिफॉर्मिटी है वो आप देखें, और फंक्शनल डिसेबिलिटी अगर पेशेंट की है और अगर आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं इवन इफ द टाइम बीइंग, द पॉइंट इंपॉर्टेंट इज को उनको काउंसल करें कि आप असल पैथोलॉजी को हिट नहीं कर रहे, ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, तो रिकरेंस के रेट काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ अर्सा तो ये डेफिनेटली बेहतर रहेगा। और आपका ये जो ऑर्थोटिक्स के और स्प्रिंट्स के पॉइंट है उससे टोटली एग्रीड कि दे शुड ओनली बी यूज्ड एट नाइट, सो दैट आप मसल जो वीक ऑलरेडी गड़बड़ है उनको 24 घंटे बना के मजीद वीक तो ना करें ना इनको, ठीक है ना। और आपका केस ज़बरदस्त था, और इसके साथ मेरा ख्याल हम कंक्लूड करते हैं। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, दोनों केस आज हमने कवर कर लिए, इसके पाँव की और एंकल की जो है डिफॉर्मिटीज़, और दोनों बाई चांस एक्वायर्ड और ट्रामेटिक थी, आज कंजेंटल की तरफ हम नहीं गए, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो एनीथिंग एल्स सर? जबरदस्त। सर सिकंदर है, कुछ कहना चाहते हैं? सर सिकंदर।
ओके, थैंक यू, गुड प्रेजेंटेशन फ्रॉम HMC टीम एंड वेरी गुड। ये रूटीन का केस होता है, आते हैं हमारे पास, वही बात वेदर वी शुड डू इट और नॉट डू इट, लेकिन आई थिंक सो वी शुड डू इट। वही बात कि अगर 5-10 साल 12 साल उसके अच्छे गुजर जाएं तो वो दैट्स ए गुड थिंग, फंक्शन इंप्रूव हो जाता है। Okay, thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.